Hello student, this is Rohit Upadhyay, computer teacher at Mount Uttara School, Jhansi. Student, we already learned about three categories of tokens, that is identifier, literals and keywords. In this video, we'll discuss two more categories of tokens, that is operators and punctuators. So let's start. Operators. Operators can be defined as symbols that are used to perform operation on operands. Operators we are using in Python to perform any type of operation, either arithmetic, logical, relational, assignment, or any type of operation. If we are going to perform, that time we have to require operator. These are the symbols, and these operators perform on operands. सपोज अगर हमें एडिशन करना है दो वेरिएबल्स का, देन वी विल राइट a plus b. Here a and b are the operands and plus symbol is called operator. So there are different types of operators are available in Python. You can see arithmetic operators, relational operators, assignment operators, logical operators, bitwise operators, membership operators and identity operators. So we'll start learning each type of operator stepwise. First is arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, finding modulus, finding floor division and exponent. Here you can see a table in which you can see the symbol, description and the example of each arithmetic operator. This is the example of addition operator, a plus b. Here a and b are operands and plus is addition operator. Here you can see subtraction operator, then division operator, then multiplication operator, then modulus operator. Now what is the use of modulus operator? This all four we know: addition, subtraction, multiplication, division. But what is the use of modulus operator? Modulus operator, here you can see the example a modulus b. It means a is divided by b and what is the remainder that is saved in the variable. मतलब हम a को b से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को हम लोग एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेंगे. सो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर को रिटर्न करता है. नेक्स्ट वन इज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर. फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर व्हाई वी यूज, हियर यू कैन सी द सिंबल ऑफ फ्लोर डिवीजन, two forward slashes. So floor division we are using to divide. Here a floor divided by b means a is divided by b, and if the answer is in the decimal point, so floor division removes the decimal and the digits after the decimal and gives the answer in integer form. सपोज a को b से डिवाइड करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन था 3.2 आता है, देन फ्लोर डिवीजन हमेशा 3 को रिटर्न करेगा, डेसिमल और उसके बाद के डिजिट को ये रिमूव कर देगा. And last one is exponent. Exponent we are using to perform raised to power. Here you can see a exponent b. If we want to find out the a power b, that time we can use the exponent. Suppose प्रोग्रामिंग में अगर हमें 2 की पावर 50 का यूज करना है, देन वी कैन यूज 2 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 50. सो वी विल गेट द 2 पावर 50's रिजल्ट. सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर. नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ऑपरेंड्स. जब भी हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन का पता करना होता है, दैट टाइम वी विल यूज द रिलेशनल ऑपरेटर. Here you can see a table in which you can see the symbol, description and the example of each relational operator. First is equal to operator. Whenever the value of a and b are equal, that time this operator we will use. इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है इसमें हम लोग डबल इक्वल के साइन का इस्तेमाल करते हैं. 2 बार हम लोगों ने इक्वल का साइन लगाया हुआ है. दिस इज कॉल्ड द इक्वल टू ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर वी विल यूज टू चेक द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल और नॉट.
नॉट इक्वल के सिंबल के लिए वी कैन यूज दिस सिंबल। Here you can see जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है या नॉट इक्वल है, दैट टाइम हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दीज आर ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम किसी ना किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज फर्स्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑपरेटर। हियर दिस द सिंबल इज ऑफ इक्वल टू, बट दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू वर्ड पढ़ा था, दैट इज द इक्वल टू ऑपरेटर, एंड द सिंबल ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर इज इक्वल साइन ट्वाइस। दो बार इक्वल साइन का इस्तेमाल करना होता है, बट यहां पर हम लोग एक बार इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस वॉट एवर सेव इन बी दैट इज नाउ सेव्ड इन ए। बी के अंदर जो भी वैल्यू हम लोगों ने सेव करके रखी थी, अब वो वैल्यू हम लोग ए के अंदर सेव कर रहे हैं। सपोज यहां मैंने बी के अंदर 5 को सेव किया था, नाउ मैंने लिखा ए इक्वल टू बी। तो अब जो बी की वैल्यू थी, बी के अंदर जो वैल्यू सेव थी, वो अब ए के अंदर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट यू कैन सी plus n equals to, divide n equals to, multiply n equals to, minus n equals to. It means here you can see a plus equal to b. It means a is saved a plus b. इस सिंबल का मतलब है आप पहले a और b लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों ऑपरेंड्स को आप प्लस करेंगे। प्लस करने पर जो भी रिजल्ट होगा उसे फिर से आप a के अंदर सेव कर देंगे। सपोज a के अंदर 2 वैल्यू थी, b के अंदर 3 वैल्यू थी। नाउ मैंने ये स्टेटमेंट लिखा a प्लस इक्वल टू b। इट मींस 2 प्लस 3 5 एंड 5 वैल्यू अब a के अंदर सेव हो जाएगी। सेम एज डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। जो भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे, उनको परफॉर्म करने के बाद इक्वल का साइन जो है वो वैल्यू को असाइन कर देता है लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल के अंदर। So these are the assignment operator. Next is logical operator. Logical operator are used to perform logical operations. Here 3 types of logical operators are available: and, or, not. And operator, or operator, not operator. First we'll discuss about the and operator. एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। ये ऑपरेटर एक से ज्यादा कंडीशन को टेस्ट करते हैं। जब भी हम कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं या लूपिंग में इन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, जब भी हमें दो से ज्यादा कंडीशंस, 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस को अगर हमें एक साथ चेक करना है, दैट टाइम वी विल यूज द लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर विल चेक बोथ द कंडीशन, एंड इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन इट विल सेंड ट्रू। Or operator will check both the condition. If any of the conditions is true, then it's set true. And not operator reverse the condition. If the condition is true, then operator returns false. If the condition is false, then operator is return true. You can see an example here. Suppose A and B having 2 values. A is 30 and B is 20. Here we are going to check a condition. If a equal to 30 and b equal to 20, then print hello. So आपने देखा एंड ऑपरेटर ने दोनों ही कंडीशन को टेस्ट किया है। अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू जैसे कि ऊपर इनिशियलाइज की गई थी वैसे की वैसी सेम है तो हमारा हेलो प्रिंट होगा, अदरवाइज हेलो प्रिंट नहीं होगा। एंड ऑपरेटर इन दोनों कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तभी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूट होगा एंड आउटपुट हेलो प्रोड्यूस होगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती या दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट फॉल्स होता। इट मींस एंड ऑपरेटर ओनली प्रोड्यूस ट्रू व्हेनेवर बोथ द कंडीशंस बिकम्स ट्रू। बट अगर हम यहां पर और ले लेते, और लेने के लिए इफ एनी ऑफ द कंडीशन बिकम्स ट्रू देन द और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो और ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आए, सॉल्व क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2,
that time we have to perform both the question, then only we will get the marks. अगर हम दोनों क्वेश्चन को परफॉर्म नहीं करेंगे, किसी भी एक क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे, तब हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो एंड ऑपरेटर के साथ में हमें दोनों ही क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, हमें दोनों ही कंडीशन को टेस्ट करना है, और दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होंगी, यानी दोनों ही क्वेश्चन जब सही होंगे, देन विल गेट द फुल मार्क्स. इट मींस हमारा फाइनल आउटपुट ट्रू होगा. इफ क्वेश्चन लाइक दिस, सॉल्व क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, दैट टाइम हम लोग या तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर सकते हैं. दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर वी विल गेट फुल मार्क्स. सो और ऑपरेटर जो है वो दोनों में से किसी भी एक कंडीशन के ट्रू, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है या दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तब भी हमें वो ट्रू ही रिटर्न करता है. बट अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, देन और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है. नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर हमेशा कंडीशन को रिवर्स कर देता है. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमेशा रिजल्ट फॉल्स देता है. अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये हमेशा हमें ट्रू आंसर देता है. दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये आउटपुट को हमेशा कॉम्प्लीमेंट कर देता है, रिवर्स कर देता है. अगर ट्रू थी हमारी कंडीशन तो ये फॉल्स कर देगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स थी तो ये ट्रू कर देगा. सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स. Next is membership operator. Membership operator in Python are used to validate whether a value is found within a sequence such as a string, list, tuple, dictionary, set, etc. मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो हमेशा किसी भी सीक्वेंस में, सीक्वेंस हमेशा स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, इस सीक्वेंसेस ऑफ डेटा के अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, इसको पता करने के लिए ये वैल्यू उस सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसको पता करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. दो मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, इन एंड नॉट इन. इन, अगर इन ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न कब करेगा, जो वैल्यू अगर हमारी सीक्वेंस के अंदर मौजूद होगी. अदरवाइज नॉट इन ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब वो एब्सेंट होगी. इन द एग्जांपल यू कैन सी हियर a इक्वल्स टू 22. एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू स्टोर की है 22, एंड हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लिस्ट कि हम लोग लिस्ट कैसे बनाते हैं. इट कंटेन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स वैल्यू और द सेम डेटा टाइप्स वैल्यूज. इट इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड लिस्ट. सो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज को सेव किया है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू चेक दैट 22. Here we are going to check in underscore answer equals to a in list. जो a है वो लिस्ट में मौजूद है या नहीं है. a के अंदर सेव था 22. in ऑपरेटर चेक्स द प्रेजेंस एंड लिस्ट मीन्स द कलेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज. मतलब ये 22 जो वैल्यू है क्या वो इस लिस्ट में मौजूद है. अगर इस लिस्ट में मौजूद है देन द आंसर इज ट्रू. अगर ये लिस्ट में मौजूद नहीं है देन आंसर इज फॉल्स, बिकॉज इन चेक द प्रेजेंस. तो हमें यहाँ पर चेक करने पर देखो क्या मिल रहा है. यस, पहला आंसर जो हमारा इन डॉट आंसर हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट किया था तो ट्रू आएगा, क्योंकि जो ए वैल्यू थी वो लिस्ट में मौजूद नहीं थी. दूसरा हम लोगों ने एक और वेरिएबल, ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफायर क्रिएट किए हैं. अपने मन से आप कोई भी नेम यहाँ पर ले सकते हो. नॉट इन अंडरस्कोर आंसर. सो ए नॉट इन लिस्ट. क्या ए यानी 22 नॉट इन लिस्ट, क्या 22 लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, बट 22 तो मौजूद है. इसका मतलब ये जो एब्सेंट यहां पर बोल रहे हैं, ये नॉट इन ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा और इस आइडेंटिफायर के अंदर फॉल्स होगा, जिसे हम यहां पर प्रिंट कर सकते हैं. सो इन ऑपरेटर चेक करता है किसी भी वैल्यू को हमारे सीक्वेंस के अंदर, उसकी मौजूदगी को, उसके प्रेजेंस को चेक करता है, और अगर वो मौजूद होता है देन ट्रू रिटर्न करता है, और मौजूद नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करता है. नॉट इन ऑपरेटर जो है वो उसकी एब्सेंस को चेक करता है. अगर वो एब्सेंट होता है सीक्वेंस में देन वो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर एब्सेंट नहीं होता है तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करता है. सो दीज आर द मेंबरशिप ऑपरेटर. Next is identity
operators. Identity operators in Python compare the memory locations of two objects. आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो ऑब्जेक्ट्स की या किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि सपोज एक ही वेरिएबल, दो वेरिएबल के अंदर अगर सेम वैल्यू हम लोगों ने सेव की है, देन दो ऑपरेटर है हमारे पास, इज एंड इज नॉट। अगर दोनों के अंदर सेम वैल्यू है देन इज ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सेम वैल्यू नहीं है देन इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। इज नॉट ऑपरेटर चेक करता है क्या दोनों के अंदर सेम वैल्यू नहीं है, अगर सेम वैल्यू नहीं है देन ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। Here you can see an example. We have created two variables a and b in which we have saved a same value 34. First we have given a condition a is b. If a is b, a is b, अब यहाँ पर इज ऑपरेटर चेक कर रहा है क्या a और b दोनों की वैल्यू सेम है। अगर हाँ a और b दोनों की वैल्यू सेम है देन द प्रिंट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट बोथ a and b हैव सेम आइडेंटिटी। अगर a और b के अंदर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है देन प्रिंट स्टेटमेंट a and b हैज डिफरेंट आइडेंटिटी। तो आप यहाँ देख रहे हो a और b दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, इसलिए सबसे पहला प्रिंट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट में देख सकते हैं बोथ a and b हैज सेम आइडेंटिटी, ये एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, हम लोगों ने यहाँ पर b की वैल्यू को चेंज कर दिया है। b के अंदर अब 99, पहले 34 था, अब b के अंदर हम लोगों ने 99 कर दिया, जिससे a और b के अंदर दोनों वैल्यू डिफरेंट हो गई। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू चेक इफ a इज b, क्या अब a और b दोनों सेम है। नाउ a और b दोनों की वैल्यू चेंज हो गई, दोनों सेम नहीं है, इसलिए अब एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, a एंड b हैज डिफरेंट आइडेंटिटी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। So same as membership operator we are using the identity operator. membership operator में हम लोग presence और absence को चेक करते थे, but identity operator में हम लोग memory locations को चेक करते हैं कि दो अलग अलग memory location के अंदर same data save है या नहीं है। अगर same data save है then is operator true return करेगा, otherwise is operator false return करेगा। अगर दोनों के अंदर same data है then इज नॉट ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों के अंदर सेम डेटा नहीं है देन इज नॉट ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। सो दीज आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज punctuators. So now we have completed all the operators available in Python. This is the last token of Python programming, that is the punctuators. So punctuators are the special symbols which we are using like a grammatical and structure of a Python syntax. Here you can see so many symbols which we are using to write a Python program, which we have a which having different meanings. So these are the symbols that are used in programming language to organize sentence structures and indicate the rhythm and emphasis of expressions, statements and program structures. Here you can see so many punctuators which we use in Python program. I hope what are the topics which we have discussed today, it is clear to you. Thank you. Have a nice day.